الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ تو آج کا ٹاپک الحمدللہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دوست کیسے بنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دوست کس طرح سے بنا جائے۔ تو دوست ایک ایسی شخصیت ہوتا ہے زندگی میں جس کے ہونے سے زندگی جو ہے زیادہ تر ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ آسان ہو جاتی ہے، صرف ساتھ بیٹھنے سے ہی کیا ہوتا ہے کہ چیزیں ہلکی لگنے لگتی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ چیزیں ہمیں کیا ہوتا ہے کہ دوستوں سے ڈر نہیں لگتا ہمیں، ہے نا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہمیں دوستوں سے ڈر نہیں لگتا، اگر ہم کوئی کام جو ہے غلط بھی کر کے آ رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ بتا دیتے ہیں اپنے دوستوں کو، آ کر بتا دیتے کہ نہیں الحمدللہ۔ اور جو ہے کیا ہے اسی طریقے سے، تو ہم کیوں بتا دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم سچے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے، اور مان لیجیے کوئی بھی غلطی ہوئی تو سب سے پہلے کس کو بتاتے ہیں؟ اپنے دوست کو، کیونکہ پتا ہوتا ہے کہ اما ابا کہیں نہ کہیں جو ہے ہم کو ڈانٹ لگا دیں گے، یا پھر جو ہے کوئی کام اٹک گیا، یا گھر میں ماں باپ بھی اگر بیمار پڑے ہوتے ہیں تو اتنی گہری دوستی ہماری ہو جاتی ہے کہ ہم پہلے اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں۔ کسی بھی مدد کی ضرورت پڑ گئی، کہتے ہیں نا کہ بچپن سے جانتی ہوں یا بچپن سے جانتا ہوں اس کو، تو وہ تو میری ضرور ہی مدد کرے گا۔ یا پھر کسی سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے دوست کو کال کر کے، زیادہ تر جو ہوتا ہے بوائز ایسا کر کے بلا لیتے ہیں۔ تو ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم ساری چیزیں جو ہیں ہم اس پر کیا کرتے ہیں، ہمیں اعتماد اتنا ہوتا ہے، ہمیں بھروسہ اتنا ہوتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہر چیز سنبھال لے گا۔ ہاں، دوست بہت ایک اچھی شخصیت ہوتی ہے، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست کیسے بنے۔ بے شک میرے دوستوں کو میری چیزیں پتا ہیں، بے شک آپ کے دوستوں کو آپ کی چیزیں پتا ہیں، کس ٹائم آپ غصہ ہوتے ہیں، کس ٹائم آپ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن کیا جب آپ منہ سے نہیں بول پاتے ہیں کوئی بھی لفظ تو کیا آپ کا دوست سمجھ سکتا ہے؟ یا کوئی ایسی کیفیت ہے جس کو آپ ایکسپلین نہیں کرتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے سمجھتا ہے، اور ہر چیز کو جو ہے بتا دیتا ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی اپنا دوست بنا لیں۔ الحمدللہ۔ تو قرآن میں بہت سارے جو ہے لفظ استعمال کیے گئے ہیں دوست کے لیے، تو ہم ایک ایک کر کے سب پڑھیں گے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے کس طریقے سے کہا گیا ہے، اور دوست کا بیسکلی میننگ کیا ہوتا ہے عربی میں۔ تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہے والی یا ولی۔ تو قرآن میں والی ایک ایسا محافظ ہوتا ہے، یا ایک ایسا دوست یا پھر سرپرست دوست ہوتا ہے جو آپ کی مدد کو آتا ہے، اور آپ کی رہنمائی اور آپ کی حفاظت کرتا ہے جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب محافظ بھی ہوتا ہے والی کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ البقرہ میں کی آیت نمبر 257 میں فرماتے ہیں، اللہ والی ہے مسلمانوں کا، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ اب اندھیروں سے نور کی طرف نکالنے کی اگر ہم تفسیر میں جائیں گے بہنوں، تو صحیح سے جو غلط سے صحیح کی طرف جو ہے لے کر آنا، نور کی طرف، کیونکہ جب نور ہوتا ہے تو ساری چیزیں جو ہیں سب کچھ صحیح صحیح دکھائی دینے لگتی ہیں روشنی میں، کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ اور کافروں کی حمایتی شیطان ہے، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ دوست ہے۔ اللہ کیسا دوست ہے؟ جو کہ سرپرست ہے۔ جو سرپرست کیسا دوست ہوا؟ جو محافظ ہوتا ہے، یعنی کہ حفاظت کرنے والا۔ حفاظت کی ضرورت کب پڑتی ہے انسان کو؟ جب وہ کسی مصیبت میں پڑنے والا ہوتا ہے۔ تو جب کوئی انسان کسی مصیبت میں پڑنے والا ہو اور اس کو محافظ کی ضرورت ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر محافظ بنتا ہے، یعنی کہ دوست بنتا ہے۔ کس کا؟ مسلمان کا۔ اور کہاں پر لے کر آتا ہے؟ اندھیرے سے روشنی میں لے کر آتا ہے۔ اب اگر اس کا ایک ایگزامپل لے لیں ہم اپنی زندگی میں، کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کیا چیز صحیح ہے یا پھر کیا چیز غلط ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ترنت اٹھاتے ہیں فون، اپنے دوست کو
क्या करते हैं, फ़ोन मिला देते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा कि वो अंधेरों से नूर की तरफ लेकर जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेहतर दोस्त कोई हो ही नहीं सकता, उससे बेहतर जो है राय कोई दे ही नहीं सकता। तो लिहाज़ा क्या करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारें। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से सूरह हामीम, हामीम में जो नाम है हमीम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। हमीम एक ऐसा दोस्त होता है जिसकी मोहब्बत और उसका रिश्ता आपको इमोशनल या जज़्बाती बना देता है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं अपने दोस्तों के लिए। लेकिन ये वाला वर्ड जो दोस्ती का आया है, ये किन लोगों के लिए आया है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किन लोगों को लिखा है कि ये वो दोस्त है जो हमें उन लोगों के साथ भी होना चाहिए जो हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं या हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह हामीम की आयत नंबर 34 में फरमाते हैं, और नेकी और बदी बराबर ना हो जाएगी। ए सुनने वाले, बुराई को भलाई से टाल, जबी जबी वो कह तुझ में और उसमें दुश्मनी थी, ऐसा हो जाएगा जैसा कि गहरा दोस्त। अगर कोई इंसान बुराई को भलाई से टालता है तो हो सकता है जो सामने वाला इंसान है वो भी दोस्त बन जाए। और ये कौन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि नेकी और बदी जो है बराबर नहीं हो सकती। तो एक दोस्त का मतलब ये भी है कि आपको जो बुरा आपके साथ कर रहा है उसके साथ भी किस तरीके से रहना है, दोस्ती की तरीके से रहना है। और उसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद कह दिया कि मैं हूँ मुसलमानों का, यानी कि मोमिन का दोस्त मैं खुद हूँ। और हमने वाली का मतलब क्या पढ़ा था कि जो मुहाफिज है और जो हिफाजत करता है, और जब कभी कुछ चीज समझ नहीं आ रही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक और नाम है खलील। और अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में एक और लफ्ज़ है जिसे कहते हैं खलील। और खलील जो होता है उस एक ऐसा जुमला है जिसका मतलब ये है कि खलल यानी कि खत्म हो जाना, यानी कि जहाँ पर सारी मोहब्बतें खत्म हो जाए, उस इंसान ऐसे दोस्त को क्या कहता है, उसको खलील कहा जाता है। वो शख्स होता है जो आपके बहुत ज्यादा करीब होता है, जो क्या होता है, जो वहाँ आपके मतलब कभी अगर आपके पास भी नहीं है तो आपको उसकी बहुत ज्यादा याद आती है और कमी महसूस होती है। और जब वो गैर हाजिर होता है तो आपको क्या होता है, आपको उसकी बहुत ज्यादा याद आती है। और हमेशा जो है उनके बारे में क्या होता है, हम लोग सोचते रहते हैं। और इस तरह का दोस्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कौन थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। तो सूरह अन-निसा की आयत नंबर 125 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और उससे बेहतर किसका दीन जिसने अपना मुंह अल्लाह के लिए झुका दिया, और वो नेकी वाला है और इब्राहिम के दीन पर चला जो हर बातिल से जुदा था, और अल्लाह ने इब्राहिम को अपना गहरा दोस्त बना लिया। सुभान अल्लाह। तो अगर हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दोस्त बनना है और गहरा दोस्त बनना है तो हमें किस पर चलना है? अपना मुंह अल्लाह के लिए झुका दिया, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जितने दिए हुए हुक्म हैं उन सब पर क्या कहा हमने, उन सब के ऊपर हमने हाँ बोल दी, और हमने उस सब चीजों को मान लिया और नेकी वाला है और इब्राहिम के दीन पर चला। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन कौन सा है? जो कि इस्लाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। जो हर बातिल से जुदा था, और अल्लाह ने इब्राहिम को अपना गहरा दोस्त बनाया। तो हमें अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गहरा दोस्त बनना है तो हमें क्या करना है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खुद को पेश कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर अरबी ज़ुबान में बात की जाए तो सादिक कहा जाता है या सिद्दीक कहा जाता है। सादिक जो वर्ड है वो सिद्दीक से निकला है, जिसका मतलब होता है क्या? हाँ, दोस्त। अब दोस्त जो है कभी कहीं कहीं क्या होता है कि साहिब साहिब भी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना सहाबा, लेकिन सहाबा जो होता है वो कंपेनियंस के लिए यूज किया जाता है। तो सादिक का मतलब सच्चा भी होता है। तो सादिक कैसा दोस्त होता है? सादिक लफ्ज सदीक से आया है जिसका मतलब है सच्चाई, या सादिक एक सच्चा दोस्त होता है कि कोई ऐसा शख्स जो आपसे किसी गलत मकसद के लिए दोस्ती नहीं करता। सुभान अल्लाह। और हमें कभी नहीं छोड़ता, चाहे हम चाहे तो हम बैंकरप्ट हो जाएं, जिसको बोलते हैं ना दिवाला निकल जाए, या फिर जो है हर दुनियावी मिल्कियत जो है खो दे, यानी कि मेरे पास अगर कोई भी चीज है, अगर मैंने खो दी उसके बावजूद भी ना छोड़ने वाला। अगर हम
गुमराह हो जाए तो भी वो हमें नहीं छोड़ेगा, बल्कि हमें हमेशा कैसे नरमी से जो है याद दिलाता रहेगा और सीधे रास्ते की तरफ जो है बुलाता रहेगा। वही दोस्त है जो दुनिया और आखिरत में दोस्त होगा। हर कोई जो हमारा दोस्त बनता है जब हमें हकीकी ज़रूरत होती है, वही क्या होता है हमें जब हकीकी ज़रूरत होती है वहाँ वही जो है हमको छोड़ देगा। उसके लिए सूरह अश-शूरा की आयत नंबर 99 से आयत नंबर 101 है। और हमें मुजरिमों के सिवा किसी ने गुमराह नहीं किया, तो अब हमारे पास ना कोई सिफारिशी है और ना कोई मुखलिस दोस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सादिक कैसा दोस्त होता है कि चाहे आप बैंकरप्ट भी हो जाओ, तो ये वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया मुखलिस दोस्त के लिए। तो एक मुखलिस दोस्त कौन-सा हो गया जिसमें खुलूस हुआ, जिसके अंदर सिंसियरिटी हुई। चाहे तो आप बैंकरप्ट हो गए, चाहे जो है आपके पास से दुनिया की सारी मिल्कियत जो है वो छिन जाए, या फिर जो है आप गुमराह भी हो जाए, उसके बावजूद भी जो है वो दोस्त आपका दोस्त ही रहता है। तो क्या कोई दुनिया में ऐसा होगा कि आपके पैसे से मोहब्बत ना करता हो और आप बहुत ज़्यादा अमीर हो, तो कहीं न कहीं इंसान के दिल में लालच आ जाता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपके पैसे से कोई भी लालच नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही देता है जो भी देता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है मुखलिस दोस्त हो सकता है, और अल्लाह ही जो है खलील हो सकता है। सुभान अल्लाह, क्योंकि उसके आगे तो सारी मोहब्बत जो है क्या है, ख़त्म है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको कहते हैं सिद्दीक या फिर सदीक। तो ये किससे निकला है? ये निकला है अरबी के वर्ड से, स्वाद, दाल और काफ से, सदक जिसको बोलते हैं। सदक का मतलब होता है सच्चा। सदक सादिक से बेसिकली इसका मुराद है। तो सदक का मतलब होता है सच्चा, और इसका जो है इस तरीके से मायने निकलते हैं, यानी कि ऑनेस्ट, सिंसियर, ट्रुथ और लॉयल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या है? ईमानदार, खुलूस, सच्चाई वाला और वफादारी वाला। यानी कि अगर हम दोस्त का तर्जुमा करते हैं और दोस्त का पता लगाते हैं कि दोस्त आखिर है क्या, दोस्त बोलते किसको है, तो दोस्त का मतलब होता है सादिक, और सादिक का मतलब होता है क्या? सच्चा, जो कि हमसे कभी झूठ ना बोले। और जो चौथी चीज़ है ना इसके अंदर, वफ़ादारी। देखिए आजकल क्या होता है कि दोस्तों में वफ़ा नहीं होती है। आज इसके हो गए, कल को किसी और के हो गए। और वफ़ा जो है हर किसी आजकल के ज़माने में बिल्कुल भी रही नहीं है। और सच्चा, सच्चा हर कोई इंसान जो है अपने फ़ायदे के लिए झूठ भी बोल सकता है। खुलूस, उसकी नीयत जो है पता नहीं आपको, आप पता ही नहीं लगा पाएँगे। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही ऐसा है जो कि अगर आप कैसे हैं, आप ईमानदार हैं उसके साथ, आपकी नमाज़ें सही हैं, तो वो आपके साथ वैसा ही है। अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ सिंसियर हैं, तो वो भी आपके साथ वैसा ही है। अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ सच्चे हैं, तो वो भी आपके साथ वैसा ही है। और अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वफ़ा दिखाते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी आपसे वफ़ा दिखाता है। लेकिन अगर हम किसी एक ऐसे इंसान को अपना दोस्त बोल दें और कह दें कि वो सच्चा भी है, वफ़ादार भी है, वो खुलूस नियत भी रखता है हमारे लिए, और जो है वो सच्चा भी है, तो कहीं न कहीं उसके अंदर इन 4 चीज़ों में से कोई ना कोई जो है कमी निकल आएगी। लेकिन सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही ऐसा है जिसके अंदर जो है हर जो कि बेनियाज़ है और हर कमी से पाक है। तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दोस्त बनाएँ। तो एक सदीक या फिर एक सादिक एक ऐसा फ्रेंड होता है जो क्या दोस्त को जो रियल मतलब है वो ये है कि इन चारों में, यानी कि जो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हम इन चारों चीजों को देखेंगे। अब हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दोस्त बनना है, तो दैट मीन्स हमारे अंदर भी ये चारों चीजें होनी चाहिए। हमें पता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑनेस्ट है, हमें पता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है सच्चे हैं, और हमें पता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वफ़ा ही करता है, बेवफ़ाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अंदर नहीं। तो जब हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दोस्त बनना है, तो मैं अगर किसी की दोस्त बनना चाहती हूँ, तो मेरे अंदर ये चारों चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये देख लूँ कि मेरे अंदर ये चारों चीज़ें हैं या नहीं, या ये जो चारों चीज़ें मैंने लिखी हैं, तो उन चीज़ों को मैं कैसे लेकर आऊँगी अपने अंदर, ठीक है? तभी तो किसी का दोस्त बन सकते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो सच के बदले सिर्फ़ और सिर्फ़ सच पसंद है। अल्लाह जो है इंसानी इंसानी दोस्ती कैसी होती है बहनों? इंसानी दोस्ती में इंसान आपको बहुत मोहब्बत कर रहा है, बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन आपको दिल का नहीं पता। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है कि अगर मैं उसकी दोस्त बनना चाहती हूँ, तो मेरे दिल में क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ट्रुथ एंड लॉयल्टी ये क्या है? ये एक फ्रेंड के मतलब हैं, मुआयने हैं।
तो मैं खुद से पूछ लूँ कि मुझे अल्लाह का दोस्त बनना है, तो क्या मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ ईमानदार हूँ? क्या जो है उसके बंदों के साथ ईमानदार हूँ? क्या दुआओं में और नमाज़ों में मेरा खुलूस है और मैं शिद्दत से करती हूँ दुआएँ और नमाज़ें? क्या ऐसा है कि नमाज़ जो है, क्या है, छोड़ रही हूँ, और या फिर जो है क्या है, अंदर से जो है बेचैन हो रही है, नमाज़ छूट रही है मेरी, और मेरी रूह अंदर से बेचैन हो रही है, या फिर मेरी नमाज़ें छूटती चली जा रही है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सिंसियरिटी नहीं है मेरे लिए, मेरे अंदर। क्या क्या मतलब मैं सच बोलती हूँ या सच मानती हूँ या सच पर ही अड़ी रहती हूँ? या फिर जो है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कितना ज़्यादा मुझको पसंद करेंगे, और इन्हीं चीज़ों से पसंद करेंगे, क्योंकि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं, हमें क्या करना है, खुद को अल्लाह का दोस्त बनाना है। तो यानी कि काम मुझे किस पर करना है? सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद पर। तो अपने अंदर ये चारों चीज़ें जो हैं मुझे लेकर आनी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर हम बात करें, मैं अगर यहाँ बैठी जितनी भी बहनें हैं, और मैं सबसे पूछूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दोस्त कौन बनना चाहता है? तो शायद सभी कहेंगे कि मैं बनना चाहती हूँ। लेकिन उसके लिए ये चारों क्वालिटी मैं पूछूं कि किसके अंदर है, तो हम में से सभी बहनें कहीं ना कोई ना कोई चूक होगी हमारे अंदर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ जो है कमी रह जाती है। तो इन चारों आयतों से जो भी हमने पढ़ा, वो हमें यही पता चला कि असल दोस्त जो है वो वही है जो कि आखिरत में भी साथ हो, और हमारा सिफारशी भी हो, और जो है हमारा निगहबान भी हो। देखिए, एक इंसान सिर्फ सच्चा हो सकता है, वो निगहबान नहीं हो सकता। और एक इंसान जो है वफादार हो सकता है, वो सच्चा नहीं हो सकता। हर किसी में चारों क्वालिटी नहीं होगी, लेकिन सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही ऐसा है जो कि बेनियाज़ है और हर चीज़ से पाक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे दोस्त बनने के लिए अब अपने अंदर ये चारों की चारों क्वालिटी लेके आए। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हम ऐसे क्या करते हैं हम ज़्यादातर, कि कोई सेलिब्रिटी है, अगर उन उसका कोई दोस्त होता है, तो हम बढ़ चढ़ के बताते हैं कि देखो, मेरा जो दोस्त है उसका वो दोस्त वो सेलिब्रिटी है। हम क्या करते हैं, दूर दूर से ताल्लुक बनाते हैं। इंसान ऐसे ही तो है ना, जो ऊंचाई पर होता है उससे दूर दूर के ताल्लुकात भी दिखाता है, और जो छोटा होता है तो उससे सगे सगे रिश्ते भी जो है क्या करता है, छुपा लेता है। ये इंसानी फितरत है बहनों, कि उसको लगता है कि दुनियावी जो वो है स्टेटस, वही स्टेटस है। लेकिन क्यों ना मैं ऐसे इंसान को दोस्त बनाऊं, या ऐसी ऐसे शख्सियत को दोस्त बनाओ जो कि जिसके हाथ में पूरी दुनिया ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों ना ऐसा हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 से 64 में फरमाते हैं कि किस तरह से कोई इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दोस्त बन सकता है। सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों, ये वो वाला वली है जो सबसे पहले वाला था, जो कि निगहबान है। सुन लो, अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है ना कुछ गम, वो जो ईमान लाए और परहेजगारी करते हैं। कौन? जो ईमान लाते हैं और जो परहेजगारी करते हैं, वो क्या है? अल्लाह के वाली हैं, यानी कि क्या है? दोस्त हैं। उन्हें खुशखबरी है दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकते, यही बड़ी कामयाबी है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर क्या पता चला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किन का दोस्त है, किन का दोस्त बनेगा? जो ईमान लाए और परहेजगारी की। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईमान लाए यानी कि मोमिन है, और परहेजगारी यानी कि डरते हैं किसी भी चीज का, जो है तकवा इख्तियार करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दोस्त बनने के लिए पहले हमारे अंदर चार चीजें होनी चाहिए, जो कि इंसान को सच्चा होना चाहिए, सिर्फ अपने अल्लाह के लिए सच्चा होना चाहिए। उसके अलावा वफादारी, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह क्या जो नियत है वो सिंसियर होनी चाहिए, और ईमानदारी होनी चाहिए। और कैसे? एक वो इंसान मोमिन होना चाहिए और मुत्तकी होना चाहिए। तो हमें दो चीजें जो है अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गई हैं। तो अब टू क्वालिटीज हैं, दो क्वालिटी क्या है? बी अ बिलीवर, कि वो बिलीवर हो, वो ईमान रखता हो, और जो है क्या है, वो मुत्तकी हो, यानी कि वो तकवा इख्तियार करने वाला इंसान हो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू मोमिन कैसे बनते हैं। मोमिन बनने के लिए हमारे अंदर जो है बुनियादी खुसूसियात होनी चाहिए। क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए, या फिर क्या क्वालिटी होनी चाहिए मोमिन बनने के लिए हमारे अंदर?
अल्हम्दुलिल्लाह कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करें और किसी को उसके जो है क्या है साथ शरीक ना ठहराएँ। और दूसरी क्या ख़ुसूसियत होनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला और उसके नबी के जो है बताए गए रास्ते पर चलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी बहनें यहाँ पर हैं, वो जो है क्या करती हैं, वो अल्लाह ही सुब्हाना व तआला को मानती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सभी बहनें जो हैं शिर्क से भी पाक हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर भी चलते हैं। तो इसका मतलब एक क्वालिटी हमने पास कर ली। इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा करीब हैं अल्लाह के दोस्त बनने के। अब जो है हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि हम मुत्तकी हैं या नहीं। मुत्तकी कौन होता है? मुत्तकी का मतलब होता है जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ हो। तो जब तकवा वाला एक बार टॉपिक हुआ था तो उसके अंदर तकवे की डेफिनिशन बताई गई थी। सहाबी थे, उन्होंने पूछा कि तकवा क्या है? तो जवाब दिया गया कि काँटों का एक रास्ता है, जिसके दाहिनी तरफ भी काँटे हैं और जिसके बाईं तरफ भी काँटे हैं। तो बीच में से जो है अगर मुझे निकलना है तो मैं अपने कपड़ों को इस तरीके से समेटता जाऊँ या समेटती जाऊँ कि मेरे कपड़े जो हैं काँटे में ना फँस जाएँ और काँटे जो हैं मुझे ना चुभ जाएँ। तो जिस तरीके से वो इंसान उस काँटों भरे रास्ते में काँटों से डरता है, तो जो तकवे वाला इंसान होता है वो गुनाह करने से उसी तरीके से बचता है जैसे कि एक उस कांटों भरे रास्ते में क्या है, इंसान कांटों से बचता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कौन इंसान, तकवा क्या हुआ कि जो इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का डर रखता हो। कैसा डर रखता हो? कि वो गुनाहों से बचे और क्या करे, अल्हम्दुलिल्लाह तकवा इख्तियार करे। तो 2 क्वालिटीज़ हैं और अगर हम में से हम सभी जो हैं इस तरीके से गुनाहों से डरेंगे तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दोस्ती हमको हासिल हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह यूनुस की आयत नंबर 64 में कहते हैं, उन्हें खुशखबरी है दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत में अल्लाह की बातें बदल नहीं सकते। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है? देखिए अपनी बातों का सच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह, यही बड़ी कामयाबी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है अपनी बातों से नहीं फिरता और ना ही वो जो है अपने वादे का झूठा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्त का मतलब है सच्चा, तो अल्लाह का वादा तो सच्चा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सही बुखारी की एक हदीस है यहाँ पर, उसके बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने दोस्त के लिए यहाँ पर क्या फरमाते हैं। देखिए हमें क्या होता है कि जब हम कभी भी किसी को अपना दोस्त मान रहे होते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्शन होता है। हमें क्या लगता है कि हम मान लीजिए कि हम मुत्तकी भी हैं और हम मोमिन भी हैं, दोनों तरीके की क्वालिटी है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी का दोस्त बनने के लिए उसे करीब से जो है जानना ज़रूरी होता है कि नहीं? करीब से जानना ज़रूरी होता है। उस इंसान को, उस शख्स को, ख़ैर यहाँ तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात कर रहे हैं, तो हम करीब से जानना चाहते हैं, तभी तो हम अच्छे दोस्त बनते हैं। अच्छा दोस्त कौन होता है? जब हमें पता हो कि ये इंसान इस टाइम खाता है, इस टाइम उठता है, इस टाइम बैठता है, दुनियावी बात कर रहे हैं कि इस टाइम खाता है, इस टाइम उठता है, इस टाइम बैठता है और सारी चीज़ें जो हैं हमें पता होती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हम क्या करते हैं, कितना जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर पता चल जाए कि हम लोग क्या है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और क्या मायने रखते हैं, तो आज से ही सब जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दोस्त बनने के लिए तैयारी कर लेंगे। तो ये हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि आपने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की तो मैंने उसके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और मेरा बंदा मुझसे ज्यादा प्यारी चीज के साथ मेरी नजदीक नहीं आता जो मैंने उस पर फर्ज किया है, और मेरा बंदा नवाफिल के साथ मेरे क़र्ब हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अगर हम दोस्त बन जाएँ, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बॉयज़ का एग्ज़ाम्पल लें, तो बॉयज़ बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े में होते हैं। उनकी किसी से अगर टक्कर भी हो जाएगी, तो वो 100 लोगों को फ़ोन करके बुला लेते हैं कि भाई आप आ जाइए, आज जो है इसकी पिटाई करनी है। लेकिन अल्लाह ने यहाँ पर क्या कहा कि बेशक अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिसने मेरे किसी वली दोस्त से दुश्मनी की, तो मैंने उसके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है बहनों।
सोचो जब वो लड़ रहा है, जिसके हाथ में क्या है, जिस इंसान ने क्या किया, हर्ट किया है, उसकी सांसें हैं, तो वो चाहे तो तभी रोक दे, उसके पास तो इतना ज्यादा इख्तियार है। तो मुझे क्या जरूरत है दुनिया में जो है दोस्तों को ढूंढने की, या फिर मुझे क्या जरूरत है किसी ऐसे इंसान पर एतमाद करने की जिसके दिल का मुझे नहीं पता, जिसकी वफादारी का मुझे नहीं पता, और जो सच्चा है मेरे साथ या नहीं उसका नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह। और जब अल्लाह ने खुद ही कह दिया कि अगर किसी ने मेरे दोस्त को जो है कुछ भी कहा, तो मैंने उसके खिलाफ क्या किया, ऐलान जंग किया। और जब अल्लाह बदला लेता है, तो वो बहुत ही जबरदस्त बदला होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरीके से एक हदीस है जिसमें कहा गया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है, अगर हमें ये पता चल जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कितना ज़्यादा हमारी कदर करता है और कितना जो है हमसे मोहब्बत करता है अपने बंदों से। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं अपने बंदे के ख़याल के करीब हूँ, जैसा कि वो मेरे बारे में सोचता है, और मैं उसके साथ हूँ जब वो मुझे याद करता है, और अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है, तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ, और अगर वो मुझे मजलिस में याद करता है, तो मैं उसे मजलिस में याद करता हूँ, जो उसके ज़िक्र से बेहतर है। और अगर वो हथेली के बराबर मेरे करीब आता है, मैं उसके करीब हाथ से आता हूँ, और अगर वो हाथ से मेरे करीब आता है, तो मैं उसके पास 2 हाथ की जगह से आता हूँ, और अगर वो मेरी तरफ चलता है, तो मैं उसकी तरफ दौड़ता हूँ। सुभान अल्लाह! देखिए कोई भी रिलेशनशिप होता है, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे जो है शादी के बाद जो है इंसान के बनते हैं ननंद, भाभी, तो हर हर किसी में ना दो तरफा चीजें होती हैं तो अच्छा लगता है। यानी यानी कि एक इंसान अपने अपनी कोशिश करता है, दूसरी इंसान भी उस रिश्ते को बनाने के रखने की कोशिश करता है। लेकिन अगर मान लीजिए 2 इंसान ऐसे हैं जिसमें से एक बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हो और दूसरा इंसान जो है बहुत ज़्यादा नकारा हो और उसको कोई पड़ी नहीं होती, तो हम क्या कहते हैं ना कि ये देखो इसको कदर ही नहीं है, वो इंसान इससे इतनी मोहब्बत कर रहा है। हाँ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ क्या कह रहे हैं, हमें अल्लाह का दोस्त बनना है, तो हम बस कितना कर रहे हैं कि मैं अपने बंदे के ख़याल के करीब हूँ, कि मैं सिर्फ़ सोचूँ भी, तो जैसा कि वो मेरे बारे में सोचता है और मैं उसके साथ हूँ। मैं सिर्फ़ सोचूँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे साथ खड़े होते हैं। तो यहाँ तो एफ़र्ट की बात ही नहीं हो सकती किसी भी तरीके से, कि मैंने तो सिर्फ़ सोचा। क्या मैं किसी को सोचूँ दुनिया में, क्या वो मेरे पास आकर खड़ा होगा? नहीं। उससे बोलना पड़ेगा, उसकी मिन्नतें करनी पड़ेंगी। हो सकता है वो इंसान क्या करे कि फ्री ना हो। यहाँ पर इंसान को बुरा दिखाने का मकसद नहीं है। यहाँ पर ये है कि इंसान से बेहतर है कि हम किसके दोस्त बने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपना दोस्त बना लें, कि वो तो हर जगह है, कि मैं सिर्फ सोचूं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहाँ पर हूँ। तो कोई भी रिलेशनशिप चलाने के लिए दोनों तरफ से जो है चीज़ों का करना ज़रूरी है। तो मैं सोच रही हूँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आ जा रहे हैं। मैं सिर्फ़ एक बालिश की तरफ, तो मुझे तो कितना प मिल रहा है, 70 गुना 100 गुना ज़्यादा एफ़र्ट मिल रहा है। और इंसान को एफ़र्ट ही तो पसंद होते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो इतना कदर करता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा भी कि अगर किसी ने हर्ट किया, तो मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग करूंगा। तो जब अल्लाह इतनी मोहब्बत कर रहा है, तो इंसान मोहब्बत का भूखा है, तो वहां क्यों ना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद करीब आ रहे हैं। दुनिया की दोस्ती में शायद लगे कि जिससे दोस्ती करना चाहते हैं वो भाव खाता है, या कभी-कभी क्या होता है टाइम देता है, या टाइम नहीं देता है, या फिर अल्लाह का जो है कह कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है कि जो तन्हाई में याद कर रहे हैं मैं उसके साथ भी हूँ, जो तुम मजलिस में याद कर रहे हो मैं तुम्हारे साथ, तुम सोच रहे हो तो मैं वहीं पर ही क्या हूँ, पहुंचा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक 2 चीज़ें देखी कि जो मुत्तकी होते हैं और जो मोमिन होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अपना वाली कहा। यानी कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दोस्त हैं, और अल्लाह जो है क्या है, उनका जो है निगहबान है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका ही दोस्त है। लेकिन
अब अल्लाह के करीब जाने के लिए हमें कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेंगी, है ना? क्योंकि अगर किसी ऐसे शख्स से दोस्ती करनी है जो कि हमें अच्छा भी लगता है और जिसका ओहदा बहुत बड़ा है, तो हमें थोड़ा खुद को मेंटेन करना होता है। जब हम मिलने जा रहे होते हैं, मान लीजिए किसी से प्रिंसिपल ने बुलाया होता है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हमें बहुत अच्छे से बनकर जाना होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दोस्ती हासिल करने के लिए, उसका क़ुर्ब हासिल करने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इंशाल्लाह अब जानेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दोस्ती करने के लिए या उसके करीब जाने के लिए क्या चीज़ें जो हैं हमें मदद करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले है दुआ। तो दुआ यानी कि सप्लीकेशन, सबसे पहले दुआ। क्योंकि दुनिया में जभी भी मतलब अगर हम फँस जाते हैं तो हमें लगता है कि हम सारी चीज़ें जो है खुद से कर सकते हैं। तो पहली बात तो जो इंसान, उसका एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान का कि नहीं, नहीं मैं बहुत करीब हूँ, नहीं। सबसे पहले दुआ होनी चाहिए, तो क्या है, लेकिन हमें पता है कि अल्लाह की मदद के बगैर हम उसके करीब भी नहीं जा सकते। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करनी चाहिए कि वो हमारी मदद करे अपने पास आने में, और जो है हमें क्या करने में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना दोस्त बना ले। ठीक है, तो हमें दोस्त बनना है तो हम क्या करेंगे, दुआ, या अल्लाह हमें अपने करीब कर लीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा की एक आयत नंबर 186 में फरमाते हैं, और ए महबूब, जब तुमसे मेरे बंदे मुझे पूछे तो मैं नजदीक हूँ, यानी कि मैं वहीं पास हूँ। तो यानी कि जब मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह मुझे अपना दोस्त बना लीजिए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है, मेरे नजदीक है और मेरे करीब है। तो मैं दुआ कबूल करता हूँ, मैं नजदीक होता हूँ और मैं दुआ कबूल करता हूँ। पुकारने वाले की जब मुझे पुकारें तो उन्हें चाहिए मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाएं कि कहीं राह पाएँ। सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब जाने के लिए, उसका दोस्त बनने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? दुआ की ज़रूरत है। क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा कि मैं नज़दीक हूँ और मैं दुआ कबूल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो तो सदीक का मतलब तो सच्चा था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब बोल दिया कि मैं दुआ कबूल करता हूँ, तो दुआ कबूल होगी ही होगी। ये कोई इंसान की ज़ुबान नहीं है बहनों, के बोल दिया और मुकर गए। बोल दिया, बिट्रेयल मिल गया, बोल गया और जो है क्या हुआ, इंसान जो है उसको धोखा मिल गया। ये मेरे अल्लाह की ज़ुबान है। इसीलिए वो 4 सिफ़ात किसी उसमें नहीं हो सकती इंसान में, कि वो सच्चा भी हो, वफ़ादार भी हो, ईमानदार भी हो, सारी चीज़ें हों। नहीं, कभी नहीं हो सकती। तो फिर क्या करना है, स्टे अवे फ्रॉम पॉइजन्स, यानी कि जहरीली चीजों से दूर। अब पॉइजन का मतलब तो जहर हुआ, लेकिन जहर हो है क्या चीज? जहर हर एक ऐसी चीज है या हर शैतानी चीज है जो कि हमारी रूह को नुकसान पहुंचाती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया है, हमें मना किया है उस चीज को करने से। अब ज़हर की जो है कोई भी शक्लें हो सकती हैं। खुद को हर इस चीज़ से हमें दूर रखना है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद नहीं है। एग्जाम्पल, ऐसे दोस्त जिनका जो है क्या है, जो गुनाह करने पर मजबूर करते हैं हम लोगों को, तो उनको हमें दूर कर देना है। या फिर कोई भी ऐसी चीज जो हमें गुनाह करने पर मजबूर कर रही है, उनको क्या करना है, दूर कर देना है। तभी जो है हम क्या करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब। और इसका एग्जाम्पल लीजिए कि जब हम किसी एक अच्छे इंसान के पास जा रहे होते हैं, तो क्या होता है, हमें कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। हमें अपने पुराने तौर तरीके छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि अब हम एक दूसरी सोसाइटी का जो है हिस्सा हो रहे होते हैं, और जो हमारी गलत चीजें होती हैं वो हमें छोड़नी पड़ती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दोस्त बनने जा रहे हैं, तो कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी हमें। तो उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, एक हदीस है उसमें आता है, अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अच्छी सोहबत और बुरी सोहबत की मिसाल मुश्क बेचने वाले और लोहार की है। मुश्क बेचने वाला आपको कुछ अतर देगा, आप कुछ खरीदेंगे या आपको अच्छी बू महसूस होगी। जहाँ तक लोहार का ताल्लुक है, वो तुम्हारे कपड़े जला देगा या तुम्हें बदबू महसूस होगी। सुभान अल्लाह। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर भी है बहनों, कि सही सोहबत का होना कितना ज्यादा जरूरी है। देखिए, अब मुझे तो जाना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब, लेकिन यहाँ लोगों की बात क्यों हो रही है? यहाँ लोगों की बात इसलिए हो रही है कि अगर मुझे टॉपर बनना है, तो मुझे ऐसे लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा जो लोग क्या करते हैं, रात भर पढ़ाई करते हैं, ना कि जो लोग रात भर जो है अपनी रात को जो है किस तरीके से ज़ाया कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर इसलिए ये एग्ज़ाम्पल दिया
गया। फॉर एग्जाम्पल कि हम कहीं जाते हैं, ऐसे परफ्यूम की शॉप में जाते हैं तो वहां से महकते हुए आते हैं, महकते हुए आते हैं कैसे, चाहे हमने कुछ खरीदा हो चाहे ना खरीदा हो, वो सिर्फ टेस्टर के तौर पर भी लगा देते हैं ना सिर्फ हाथ पर, तो भी कुछ ना कुछ खुशबू जो है लगी रहती है। हम खरीदते नहीं है, हम ना ही जो है उसको पैसे देते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, हमें टेस्ट करा देता है कि देखो ये अतर की खुशबू है। सुभान अल्लाह। लेकिन इसी तरीके से जब हम किसी लोहार की शॉप पे जाते हैं, वहां क्या होता है, आग, कोयला, है ना? तो वहाँ से कपड़े जो हैं गंदे होते ही हैं। हालाँकि आपने कोई लोहार वाला काम नहीं किया, हालाँकि आपने जो है कोयले वाला काम नहीं किया, हालाँकि आप जो है क्या नहीं करते थे, वहाँ पर किसी भी तरीके का काम नहीं करते थे और ना ही आपने उस किसी चीज़ को छुआ, सिर्फ़ आप वहाँ बैठे थे। तो अब ये उन लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल हो गया बहनों, जो कहते हैं ना कि मैं तो बस साथ रहती हूँ, या फिर जो है मैं सिर्फ़ साथ रहता हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ। तो आप जब इत्र की दुकान में गए तो वहाँ आपने ना पैसे दिए ना आपने कुछ खरीदा। तो ये वही एग्जाम्पल हो गया कि मैं सिर्फ बैठता हूँ या मैं बैठती हूँ ऐसे दोस्तों के साथ, मैं खुद कुछ नहीं करती हूँ। तो एग्जाम्पल इत्र और वो है कि आप सिर्फ बैठेंगे तो भी वहां पर कालक होगी और कपड़े जो हैं गंदे होंगे। सुभान अल्लाह। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दोस्त बनने के लिए ऐसी चीजें छोड़नी है जो कि हमें क्या कर रही हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर कर रही हैं। पहले हम दुआ करेंगे और फिर जो है ऐसी चीजें छोड़ देंगे जो कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर लेकर जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तीसरी चीज़ हमें क्या करना है, गेट टू नो अल्लाह सुब्हानहू व तआला थ्रू हिज ब्यूटीफुल नेम्स। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब तक हम किसी को अच्छे से जान नहीं लेते हैं तो उसका अच्छा दोस्त या वो हमारा अच्छा दोस्त नहीं बन सकता। तो एग्जाम्पल कि क्या है कि हाँ, उसे तो मैं बचपन से जानती हूँ, है ना? सब पता है मुझे उसके बारे में, और सब कैसे पता होता है, उसकी अच्छाइयाँ भी पता होती हैं, हाँ, और वो किस चीज़ से खुश होता है वो भी पता होती है, वो किस चीज़ से नाराज़ होता है वो भी पता होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जितने भी खूबसूरत नाम हैं, अस्माउल हुस्ना के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जाना जा सकता है कि वो अल-वदूद है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैं इस तरीके से जानूँगी तो मुझे मोहब्बत होगी, और जब मुझे मोहब्बत होगी तो क्या होगा, अल्लाह को भी मुझसे मोहब्बत होगी। क्योंकि हमने इससे पहले एक हदीस पढ़ी ना कि जैसा मेरा बंदा सोचता है मेरे लिए, वैसा ही मैं उसके लिए होता हूँ। और अगर अभी मैं ये बोल रही हूँ कि अल्लाह बहुत मोहब्बत करने वाला है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे लिए क्या होगा, मोहब्बत करने वाला ही होगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैं अपने बंदे के लिए वैसा ही हूँ जैसा वो सोचता है मेरे बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मैंने सोचा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे दोस्त, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है मेरा दोस्त है। लेकिन मुझे अल्लाह का दोस्त बनने के लिए मुझे जो है कई चीज़ें ऐसी करनी पड़ेगी जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर क्या करना है, चौथा हमें ज़िक्र करना है और बहुत ज़्यादा जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करना है। तो इसके लिए हदीस है सही मुस्लिम की, जो लोग अल्लाह के घरों, मस्जिदों के दरमियान घर में जमा होते हैं और अल्लाह की किताब की तिलावत यानी कि कुरान की तिलावत करते हैं और कुरान सीखते और सिखाते हैं आपस में, उन पर सुकून नाजिल होता है। देखो, पीस सलामती होती है। आजकल ना बहनों, सुकून की ही कमी है। हर चीज है दुनिया की भाग दौड़ में, हर चीज, लेकिन सुकून नहीं है इंसान की जिंदगी में। और रहमत उनको ढांप लेती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और फरिश्ते घेर लेते हैं, सुभान अल्लाह, उनका। और अल्लाह ताला अपने मकरबों के सामने उनका ज़िक्र करता है, यानी कि जो ग्रुप होता है, किनका, जो मजलिसें होती है क्योंकि एंजल्स की, और जो नेक कामों में सुस्त हो उसका उसका बुलंद नसब उसके आगे नहीं बढ़ा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है उसके आगे जो है कोई भी चीज़, जिस जो नेक कामों में सुस्त होगा उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है उसके ऊपर क्या-क्या चीज़ें आ रही है। पहले सलामती आ रही है, फिर रहमत आ रही है, फिर क्या कर रहे हैं, फिर फरिश्ते जो हैं आके उसे घेर ले रहे हैं, और देखो फरिश्ते क्या कर रहे हैं, वो गवाह भी बन रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो अब आप एक बात सोचिए कि यहाँ जब हम दोस्ती की बात कर रहे हैं, तो हम किसी इंसान का दोस्त बनना चाह रहे हैं और उसको, वो हमें पसंद करने लगा है बेसिकली, कि मैं ऐसे काम कर रही हूँ, वो इंसान को मैं पसंद आने लगी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब मैं प्रोग्रेस में हूँ ना, इसका मतलब यही है ना कि मैं बहुत जल्दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दोस्त बन जाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने क्या-क्या चीज़ें पढ़ी कि पहले हम दुआ करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला
ہی ہے جو کہ ہمیں اس چیز کی دعا مانگنے کی بھی کیا دیتا ہے، صلاحیت دیتا ہے۔ پھر ہم ایسی چیزوں سے دور رہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا، تبھی تو اللہ مجھے اپنائے گا نا اپنے دوست کی طرح۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میں جانوں، کیونکہ جس طریقے سے میں اس کو جانوں گی اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے بن جائیں گے۔ پھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کروں۔ اب مان لیجیے دنیا کا ہی ایگزامپل لے لیجیے کہ کوئی میرے بارے میں ذکر کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، اور تو کہیں نہ کہیں ہوتا ہے نا انسان کو، ارے اس کتنا زیادہ یہ انسان پزیسڈ ہے مجھ سے، اور کتنا زیادہ جو ہے یہ میری ہی بات کرتا ہے، ایسا کیا ہے کہ بھائی میں اس کو اچھے، تو کہیں نہ کہیں اس انسان پر اٹینشن جاتی ہے ہماری۔ تو جب مجھے اللہ کو دوست بنانا تو میں ذکر کیے جاؤں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں جو ڈھانپ رہے ہیں مجھے، وہ جا کر بولیں کہ یا اللہ یہ لڑکی آپ کا بہت زیادہ ذکر کرتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اٹینشن مجھ کو ملے گی الحمدللہ۔ اور پھر دعا بھی میں نے مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے جو ہے اپنا دوست بنا لیجئے۔ پھر جو ہے کیا کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان پر جو ہے کیا کرنا ہے، الحمدللہ ان پر چلنا ہے۔ تو نبی کی سنتوں پر چل کر ہم اللہ کی محبت کو پا سکتے ہیں اور اس کے قریب جو ہے جا سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا دوست بنے تو کیا ہو جاؤ، میرے فرما بردار ہو جاؤ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے۔ لیکن آج کل ہم سے فرض بہنوں فرض بھی نہیں ادا کرتے ہیں، سنتیں تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم نہ آج جمعہ تھا، مسواک کتنے لوگوں نے مسواک کیا، وی ہیو جسٹ ابینڈنڈ آل دیز تھنگس، ہم نے یہ سب چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ڈینٹسٹ کے پاس جا جا کر جو ہے علاج کرا لیتے ہیں، سب کر لیتے ہیں، لیکن کسی نے کبھی پڑھا نہیں ہوگا کہ سائنٹیفکلی کتنے زیادہ فائدے ہیں مسواک کے۔ اور وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، کیونکہ جو آپ برش کرتے ہیں اس سے کیا ہے، وہ پلاسٹک کا ہوتا ہے بہنوں، وہ رہے گا 100 سے 200 سال، اور تبھی بھی جو ہے وہ گلے گا نہیں پلاسٹک۔ وہ بیسیکلی کیا کر رہا ہے، دنیا کو تباہ کر رہا ہے۔ لیکن مسواک ایک ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو کہیں بھی پھینک دیں، وہ ایک لکڑی ہے، جب آپ نے یوز کر لیا آپ کہیں تو وہ کہیں گھل جائے گی، اور اس کا جو ہے کیا ہو جائے گا، وہ مٹی میں جذب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، انوائرمنٹ فرینڈلی۔ لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے چیزوں کو چھوڑ دیا، ہم نے سنتوں پر رہنا چھوڑ ہی دیا۔ اور اللہ نے کیا کہا کہ میں کس کا دوست ہوں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے، یعنی کہ جو سنتوں پر چلنے والا ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا دوست بنانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، سنتوں پر چلنا ہے، ہو جاؤ۔ تو اے محبوب تم فرما دو لوگوں، بولو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، یعنی کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا دوست بنے، تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کے ورڈز ہیں بہنوں۔ ہاں، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آیت اتنی زیادہ پاورفل ہے۔ اور دیکھیے بہن، وہ جو 4 چیزیں تھی نا، جو صدیق کی 4 چیزیں، کہ ٹروتھ فل، لائل، اس کے علاوہ سچا، اور اس کے علاوہ وفادار، تو قرآن کا ہر ایک چیز سچا ہے، یہ کسی انسان کے لفظ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے رب کے الفاظ ہیں، جو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دوست رکھے گا اگر آپ کس پر چلیں گے، سنتوں پر چلیں گے۔ تو ہمیں ایک اور کیا چیز پتہ چل گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست بننے کے لیے ہمیں سنتوں پر چلنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے کیا کرنا ہے کہ قرآن سے جو ہے کنیکٹ رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن سے کنیکٹ رہنا ہے، تو کس طریقے سے قرآن سے ہم لوگ کنیکٹ رہ سکتے ہیں بہنوں؟ دیکھیے ہم سب قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ، آج جمعہ تھا، سب نے جو ہے سورہ کاف پڑھی ہوگی۔ اور جو ہے قرآن کی تلاوت کافی ساری بہنیں جو ہیں فجر میں کرتی ہوں گی، ہاں، یا جو جس کو ٹائم ملتا ہے اس ٹائم کرتی ہوں گی الحمدللہ۔ لیکن قرآن سے جڑنے کو کیوں کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ اب دیکھیے ایگزامپل دنیا کے اس لیے، دیکھیے ہے تو اللہ سے دوستی، لیکن دنیاوی ایگزامپل اس لیے دیے جا رہے ہیں نا بہنوں، کیونکہ ہم دنیا میں بہت زیادہ کھو گئے۔ ہمیں کیا ہو گیا نا، ہمیں دنیا کی ہی دوستی دکھتی ہے، ہمیں اس کی دوستی دکھتی نہیں جو بول رہا ہے کہ میں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ میں سچا ہوں، میرا وعدہ سچا ہے، اگر تمہیں کسی نے ہرٹ کیا تو میں جنگ اعلان کر دوں گا، ہاں، اور تم جیسے ہی سوچو گے میں وہاں پر موجود ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اس دوست کو تو دیکھ ہی نہیں رہے، ہم
हम क्या कर रहे हैं आज, मतलब अगर देखा जाए, मैं ये जो बोल रही हूँ या फिर ये जो भी लेक्चर है, तो इसमें मुझे दुनियावी एग्जाम्पल देने पड़ रहे हैं बहनों, सोचिए। तो ये बहुत वैसी चीज है कि हम दुनिया में इतने ज्यादा खो गए, दुनिया की ही दोस्ती हमारे लिए है कि मुझे अल्लाह की दोस्ती समझाने के लिए दुनियावी जो है दोस्ती को का जो है सहारा लेना पड़ रहा है। तो अब देखिए कि क्या है, स्टे कनेक्टेड टू द कुरान, और हमें क्या करना है, कुरान से जुड़े रहना है। तो फॉर एग्जाम्पल, जब मेरा कोई दोस्त है या फिर मेरी कोई दोस्त है, तो हम क्या करते हैं कि जब मेरे साथ कोई चीज होती है ना, तो मैं मैसेज करती हूँ उसको, या फिर जो है मैं कॉल करती हूँ उसको, और मैं बोलती हूँ कि आज ऐसा हो गया या फिर आज ऐसी चीज हो गई है। और फिर जो है हम बेसब्री से क्या कर रहे होते हैं, उसके मैसेज का वेट कर रहे होते हैं। हमें क्या लगता है कि कब वो रिप्लाई करेगी और मुझे बताएगी कि आज जो हुआ उस चीज़ के बारे में मुझे क्या करना चाहिए, या आज जो है मेरे साथ लड़ाई हो गई है किसी की, तो अब मुझे आगे क्या जवाब देना चाहिए, या आज जो है इस तरीके से मुझसे कोई काम गड़बड़ हो गया, तो मैं इसको किस तरीके से सुधारूं। तो हम वेट करते हैं ना, हम मैसेज मैसेज का इतना बेसब्री से वेट करते हैं, और हम कर रहे होते हैं वेट। लेकिन अल्लाह सुबहाना व तआला ने तो अपने मैसेजेस की पूरी किताब भेज दी बहनों, और कितनी बार हमने पढ़ा है उसको, और कितनी बार उसका जो है सलाह मांगी है, और सलाह मांग भी रहे हैं तो सिर्फ अरबी में पढ़ रहे हैं, और ना ही उसको सुन रहे हैं, और ना ही क्या कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं बहन। पूरी किताब अल्लाह ने छोड़ दी आपके लिए कि देखो अगर ये है, तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा लें, तो मान लीजिए किसी के भाई ने, सगे भाई ने किसी को धोखा दे दिया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरीके से बादशाह दिलाई। तो अल्लाह ने तो मैसेज दे ही दिया। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ जो है कोई नई चीजें हो रही है, कुरान में पहले से जवाब है। तो मैं क्या करूंगी, मैं आऊंगी, मैं फोन उठाऊंगी, मैसेज करूंगी, फिर मैसेज का वेट करूंगी, जबकि मेरे अल्लाह ने हर एक सिचुएशन के बारे में पहले से ही मैसेज दे रखा है। उसने ऑलरेडी दे दिया। वो तो ये बोल रहा है कि तुम सोचो मैं हाजिर हूँ, तुम पूछो, मैंने ऑलरेडी कुरान दे दिया है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से कनेक्ट रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, अल्लाह सुब्हाना व तआला के दोस्त बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, अब ये जो दुनियावी दोस्ती की हम बात कर रहे हैं, या जिसके जो है एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्या है उसका उसका फायदा है या फिर जो है नुकसान है ना, उसके बारे में जानते हैं। हमें ये पता चला कि आज जो वर्ड सदीक का मतलब है वो सच्चा होता है। अगर हम दुनिया में किसी को दोस्त बनाए, तो हमें जो है कभी नहीं पता चलेगा कि कौन सच्चा है, या फिर जो है वो शख्स जो है क्या है, हमारे साथ वफादार है या नहीं, हम नहीं जान सकते। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जो है हर चीज़ का जानने वाला है बेशक। लेकिन यहाँ की जो फ्रेंडशिप की बात हुई, जो कि इससे पहले हमने किसमें पढ़ा, इस वाली हदीस में पढ़ा, सही मुस्लिम की, कि जो लोग ये वाली हदीस में अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अच्छी सोहबत और बुरी सोहबत की मिसाल मुश्क बेचने वाले और लुहार की है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी से रिलेटेड जो है, जो यहाँ की दुनिया की जो फ्रेंडशिप है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ परहेजगार ही होंगे जो वहाँ एक दूसरे को बचा सकते हैं। और मुझे तो पता है कि मेरा अल्लाह इस दुनिया पर भी हुकूमत है और आखिरत पर भी हुकूमत है, तो क्यों ना मैं जो है क्या करूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ही अपना दोस्त बचा लूँ, ताकि वो मुझे मेरा मुहाफ़िज़ यहाँ भी रहे, और ताकि वो जो है मेरा मुहाफ़िज़ वहाँ भी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अज़-ज़ुख़रूफ़ की आयत नंबर 67 में फरमाते हैं, गहरे दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे मगर परहेजगार। तो इसलिए बहुत अच्छी सोहबत रखना, अल्लाह के करीब जाने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्लाह के करीब हो गए तो मैं किसी और के साथ नहीं बैठ सकती हूँ। परहेजगार लोगों में बैठूं ताकि अल्लाह मुझे भी अपना दोस्त बना ले। तो गहरे दोस्त क्या होंगे उस दिन, दूसरे एक दूसरे के दुश्मन होंगे मगर परहेजगार, सिर्फ और सिर्फ परहेजगार ही ऐसे होंगे जो कि वहां भी एक दूसरे के दोस्त होंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी तरीके से सूरह अस-सफ़्फ़ात के हाँ, आयत नंबर 51 में फरमाता है कि फरमाते हैं
کہ जब इंसान वहाँ जाएगा और देखेगा, क्या दोज़ख देखेगा और कहेगा कि मेरा एक दोस्त था जो कहता था कि क्या तुम इसको सच में मानते हो? और क्या तुम जब मर जाओगे या मिट्टी और हड्डी बन जाओगे और फिर जो है क्या झाँक कर देखोगे? और जब वो झाँक कर देखेगा, ये आयत नंबर 51 से 55 है। फिर जाग कर देखेगा तो बीच भड़कती हुई आग में पाएगा। कौन? जो इंसान क्या कर रहा था, उसको यहाँ भटका रहा था और कि नहीं, अरे ना कि थोड़े से कुछ नहीं होता, चलता है सब कुछ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दुनियावी था अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मैंने ये सिर्फ पढ़ के सुनाया। ये सूरह अज़-ज़ुख़रूफ़ की आयत नंबर 67 और सूरह अस-सफ़्फ़ात की आयत नंबर 51 से 55 थी, जो कि दुनियावी दोस्त जो है आखिरत में कैसे होंगे। लेकिन हमने जो है यहाँ पर पढ़ा, हमने पढ़ा सिद्दीक, हमने पढ़ा क्या सादिक, जो कि सच्चा है और जो कि कैसा है, जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं हमसे। अगर हम दिवाले हो गए या फिर बैंकरप्ट भी हो जाएं, तो दुनियावी मिल्कियत भी खत्म हो जाए, यहाँ तक कि गुमराह भी हो जाए, तो भी वो हमें नहीं छोड़ेगा। तो हम अगर गुमराह भी हो जाते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या हमें खाना पीना छोड़ता है? कि अल्लाह सुब्हानहू व, देखो गुमराह तो नॉन मुस्लिम्स भी है ना बहनों, गुमराह तो वो भी हैं, मुशरिकीन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनका खाना और पीना छीन लिया, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी ऑक्सीजन छीन ली, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा कोई सच्चा दोस्त हो ही नहीं सकता। हाँ, मगर कौन लोग? जो कि दुनिया में परहेज़गार हैं और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद दिलाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको। और अब इंसान जो है, अब इन सब से क्या है, बचने की ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों को। किन लोगों से बचने की ज़रूरत नहीं है? कि मैं किसके पास बैठूँ या मैं किसके पास उठूँ या फिर जो है मुझे किसके पास जाना चाहिए। और हम ये सब जो है चीज़ें सोचते रहें कि नहीं, आज मैंने लेक्चर लिया था तो मुझे इसके साथ नहीं बैठना चाहिए क्योंकि अल्लाह से के करीब नहीं है। हम नहीं जानते कौन अल्लाह का दोस्त है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं कि जिसने मेरे दोस्त को क्या किया। हाँ, इससे एक चीज़ सबक और मिलता है हमें बहनों, कि हमें कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि जिसने मेरे दोस्त को जो है नुकसान पहुँचाया, मैंने उसके खिलाफ ऐलान जंग किया। तो हम नहीं जानते कि कौन अल्लाह का दोस्त है, तो हमें कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अल्लाह का दोस्त हुआ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो बहुत ज़्यादा करीब हुआ, तो क्या हो सकता है कि हमारे खिलाफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है क्या अपना गज़ब जो है ढा सकते हैं। तो हमें इंसानों की ज़रूरत नहीं है। इंसान कौन से दोस्त? जो कि परहेज़गार हों, जिसका एग्ज़ाम्पल किस तरीके से दिया गया, मुश्क के तौर पर दिया गया कि अगर आप अतर की दुकान में जाएँगे तो वहाँ से खुशबू लेकर आएँगे। उन दोस्तों की हमें ज़रूरत है क्या? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक जाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर नहीं हो सकते तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अन-निसा की आयत नंबर 45 में फरमाता है, और अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे दुश्मनों को, और अल्लाह काफ़ी है दोस्त, और अल्लाह काफ़ी है मददगार। सुभान अल्लाह। तो वाली का मतलब दोस्त था। तो अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे दुश्मनों को। कोई अगर दोस्त बनना भी नहीं चाहता, कोई बात नहीं। तो अल्लाह ने कहा मैं ही काफ़ी हूँ दोस्त, और मैं ही काफ़ी हूँ मददगार। किसी से मदद माँगने की भी ज़रूरत नहीं। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के टॉपिक में हमने क्या देखा कि हम दोस्ती के बारे में हमने बात की। दोस्ती के कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि कुरान में यूज़ किए गए। एक है वाली, जो कि जिसका मतलब होता है मुहाफ़िज़, एक हामीम, हमीम, बेसिकली हामीम नहीं हमीम। सूरह हामीम में हमीम वर्ड यूज़ हुआ है, जिसका मतलब ये है कि जो इंसान इमोशनल होता है, किसी मतलब हम होते हैं ना सब अपने दोस्तों को लेकर इमोशनल। फिर है सादिक, और सादिक ही या फिर सिद्दीक एक ऐसा दोस्त होता है जो कि क्या करता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ बिना किसी लालच के, बिना किसी जो है आपसे चाहत के आपका दोस्त होता है, और दुनिया के साथ-साथ आख़िरत में भी होता है। जो कि कौन है? या तो परहेज़गार दोस्त हो सकते हैं या सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। शायद परहेज़गार दोस्त भी जो है कभी बिज़ी हो जाएँ, लेकिन सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जो है वो क्या है, आपका जो है दोस्त हो सकता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह, सिद्दीक़ के मतलब होते हैं सच्चा, खुलूस वाला, ईमानदार और वफ़ादार, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि किस तरीके से सिर्फ़ 2 लोग हैं जो कि मतलब क्या बन सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं अल्लाह के, जो कि क्या हों, जो कि मुत्तकी हों और जो मोमिन हों। मोमिन होने के लिए क्या होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही खालिस इबादत होनी चाहिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका,
मुत्तकी होने के लिए हर उस चीज़ से परहेज़ करनी चाहिए जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया है, मना किया है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो लोग क्या हैं अल्लाह के दोस्त हैं, उन अगर उनको किसी ने हर्ट किया या परेशान किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके खिलाफ ऐलान जंग कर देगा। और इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर कोई मेरे बारे में सोचे तो मैं वहाँ ऑलरेडी मौजूद होता हूँ। तो हम क्या करें कि अल्लाह को ही क्यों ना अपना दोस्त बना लिया जाए, कि मैं सोचूं और मेरे साथ कोई चीज हुई है आज, तो और मैं सिर्फ सोच ही रही हूँ कि अल्लाह ऐसा हो गया, और अल्लाह सुब्हानहू ताला ऑलरेडी वही है। मैं गई, मैं उठी, मैंने नमाज पढ़ी और अल्लाह सुब्हानहू ताला मुझे देख रहे हैं, वो और ज्यादा करीब आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह जो है उसके पास तो इख्तियार है ना हर चीज का। वो तो मशरिक का भी मालिक है, वो मगरिब का भी मालिक है। तो जो 2 किनारों का मालिक है, तो पूरा बीच का जो है वो किसका है? वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ही है। फिर हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दोस्त बनने के लिए सबसे पहले हमें दुआ करनी चाहिए, हर उस चीज़ से दूर रहना चाहिए जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मना किया। और किसी का दोस्त बनने के लिए उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम जानें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या-क्या सिफ़ात हैं और क्या-क्या उसके सिफ़ती नाम हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करें, क्योंकि याद करने से क्या होगा? अल्लाह का अटेंशन हमें मिलेगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सलामती भेजेंगे और फरिश्ते जो हैं हमको ढाँप लेंगे। उसके अलावा हम क्या करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा सूरह आल इमरान में कि अगर वो चाहते हैं कि मुझको दोस्त बनाए, तो वो उनको चाहिए कि वो किस में पढ़े? सुन्नतें जो हैं, सुन्नतें अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह, और कुरान से जो है कनेक्टेड रहें। क्योंकि कभी-कभी इंसान बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में होता है और कुरान में जो है सारे मैसेजेस होते हैं, तो किसी फ्रेंड के मैसेज का वेट भी नहीं करना है। कुरान खोलिए और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में आपके मसले का हल जो है दिया हुआ होता है। इसी तरीके से अगर कोई भी नहीं है या कोई बनना ही नहीं चाहते, कि दोस्ती में भी इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाता है, तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह काफ़ी है तुम्हारे लिए दोस्त और अल्लाह काफ़ी है मददगार। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको उन लोगों में बनाए जिनको जो है वो अपना दोस्त बनाता है, और जो है हमको उन लोगों में शामिल कर ले जो उसके हकीकी दोस्त हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी उसी तरीके से जो है अपना दोस्त बना ले, जिस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बनाया था। आमीन सुम्मा आमीन। और इंशाल्लाह हम अल्लाह के क़र्ब को पहुँच जाए। मेरी जितनी भी बहनें बैठी हैं, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ही बैठी हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब आने के लिए ही बैठी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेप तो हम लोगों ने जो है पार भी कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह सब मुत्तकी हैं, सब मोमिन हैं, और बाकी की जो 6 चीज़ें हैं सब दुआ भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उसके पूरा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जितना भी आज हमने सीखा उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए आने वाले 1 हफ़्ते तक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।